Can I say last 4.6 we have already completed, right? 4.6, is it completed? It's pending. But it's completed. It's absolutely completed. Then which you did illustration? 22nd you did. बहुत बढ़िया. But what we do now? Let's start now with our main exercise. Go on to page 166. Go on to page 166. Now from section B, but I hope earlier when I had given you the homework, you might have ticked the sums which had been given in homework, so that we don't repeat it right now. Okay? Acha, section B, zara tell me, have we completed sixth one? Yes. Have we completed that? Yes. What about seventh? Yes. 1 minute. The seventh one isn't done? Yes. पक्का? Yeah. अच्छा जरा हेल्प करो मेरे को. सेवेंथ वन वापस I want to solve. 25th and 75th percentile is given. So बेटा 25th percentile मतलब यहाँ ध्यान. 25th percentile is P25 and 75th percentile is P. What are the values given? 72.18 and 103. What are we supposed to find? Quartile deviation. Beta, तो previous chapter, do you remember? P25 is nothing but, and P75 is nothing but Q3. Beta, what are we supposed to find? Quartile deviation. The formula is Q3 minus Q1 upon. So 103.99, 72.18 divided by 2. 15.90. Final answer 15.905. Come on बेटा, जिन्होंने नहीं किया है या तो जिन्हों से नहीं हुआ हो प्लीज कर लेंगे. मैं नहीं देख रहा हूं, तुम्हें कर लो. जिनसे ये नहीं हुआ था, कि जिनको नहीं समझ में आया था that point of time, please complete. P25 is nothing but its Q1 and P75 it's nothing but its Q3. I'm proud of you. Okay. Now tell me, what about 8th wala sum? Can I say I'm not going to do it because it's very easy. Even the 9th one is easy? Yes. Okay. Then section C, tell me sum number 5. Beta, section C, sum number 5. Can I say we have to find range and coefficient of range? It's a very simple sum. XH जरा देखो कौन सा है उसमें? XH 11 and XL it's -3. XH क्या है? XH 11 and XL is I hope you'll able to do it on your own. बहुत बढ़िया. बेटा section C, what about sum number 6? We need to find the coefficient of quartile deviation. Can I say it's a raw data given? Our first step is arrange the observation in. बेटा Q1 का फॉर्मूला क्या लगेगा? n+1 by 4th observation. n+1 by 4. You'll get the answer for Q1. Then Q3 का फॉर्मूला क्या लगेगा? 3 into n+1 by 4. You'll get the answer for Q3. Then ultimately you'll get the answer. Even I hope 7th वाला sum is done by you people. Yes. Let's start with 8. वो नहीं हुआ है. Let's start with sum number 8. But what is x bar given in the sum? X bar? X bar is 25. Coefficient of variation is 20%. But coefficient of variation कितना है? 20%. But what are we supposed to find? Variance. But variance is nothing but it is standard deviation का square. So better raise your hand. How will I get standard deviation first?
and then उसको square करके we'll get the answer for variance. Raise your hand. बेटा बहुत इजी है, क्या कर रहे हो बेटा? CV का फॉर्मूला क्या लगेगा? S upon x bar into 100. तो अप्लाई करो ना यार, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा. CV is 20. Standard deviation I don't know, x bar is 25 into 100. बेटा मुझे अगर s ढूंढना है तो ये 25 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 20 into 25 is standard deviation into 100. 5. Can I say this is 500 is equal to standard deviation into 100? So standard deviation का आंसर क्या है? But are we supposed to find standard deviation? No, उसका square. तो standard deviation का square is 5 का square, that is 25. Standard deviation का square is nothing but it is 5 square. That is how much? 25. But at the ninth one? Okay, it's very simple. I'm not even gonna do that. Ninth one, you finish it off. What about 10th? What about 10th? But what we were supposed to find in that 10th वाले में कि which factory has more stable production? कौन सी फैक्ट्री में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्शन है? तो बेटा यहाँ ध्यान, अगर तुम भूल गए हो तो हमने CV फाइंड करा होगा. CV फैक्ट्री A का CV फाइंड करा, फैक्ट्री देन हमको कंपेयर करेंगे. जिसका भी CV का आंसर कम है, that company is more stable. That company is more. बेटा सेक्शन C में 11th वाला सम is just like this. बेटा सेक्शन C में 11th वाला इसके जैसा ही है, हो जाएगा. ओके बेटा सेक्शन D पर आ जाओ. सेक्शन D पर आ जाओ बेटा. व्हाट अबाउट सम नंबर 9? सम नंबर 9. व्हाट अबाउट सम नंबर 10? Done. 11th I hope it's pending. Yes. Mark it important, we'll be doing it later on. Mark it important. What about sum number 12? बाकी है. Let's start. Sum number 12, section D. Let's start. Better start reading the sum, all of you. Better start reading the sum, all of yous. Beta, we are given with set A and we are given with set B. Now we have to find the combined standard deviation. So number of observation जो लिखे हैं वो क्या है बेटा? N. So can I write N1 कितना है set 1 में? 50. And set 2 में? 60. Okay. Then mean बेटा x bar 1 कितना है? 113. What about x bar 2? 120. बेटा स्टैंडर्ड वाला डिविएशन S1 is 6 and S2 is 7. Okay? Okay? बेटा we have to find combined standard deviation. Raise your hand. कितनों को फॉर्मूला याद है? combined standard deviation. बेटा बॉयज साइड में जबरदस्त बेटा पार्टिसिपेशन है. एक जन का हाथ ऊपर नहीं है. इसे कहते हैं फॉर्मूला याद करना. कशिश? N1. हाँ. N1. S1. Square. हाँ.
plus D1 square हाँ bracket close plus N2 N2 S2 square S2 square plus D2 square D2 square upon N1 plus N2. पक्का? ये वाला फॉर्मूला कशिश? Yes. बेटा क्यों? कशिश पक्का? हाँ ना? कशिश का नाम लिखो। बेटा छतरी कौन देगा? छतरी ये छतरी कौन देगा? बारिश कितनी गिर रही है? अब तुम बेटा छाता ला नहीं भूल गए फॉर्मूला में? चल बेटा कोई नहीं, इसे कहते बेटा कुल्हाड़ी पे कूदना। खुद ही हाथ ऊपर करके सब मैं बताऊंगा। मजा आ गया बेटा। S1 हमने लिखा है S1, लेकिन डू यू वांट S1 के S1 का स्क्वायर चाहिए? सो S1 का स्क्वायर सीधा सीधा ढूंढ लो 36 और S2 का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर दैट इज 40। बेटा ये दोनों तो मिल गया। D1 D2 कैसे मिलेगा? कोई बोलेगा नहीं। निकिता क्या फॉर्मूला है D1 का और D2 का? x bar 1 minus x bar c. या x bar 1 minus x bar c। अच्छा फॉर दैट बड़ा कंबाइन मीन तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो चलो पहले कंबाइन मीन ढूंढते हैं। चलो n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2। n1 कितना है? 50। x bar 1 is 113, n2 is 60, x bar 2 is 120 upon n1 plus n2 that is 50 plus 60। so बेटा 15 to 113 मारो। 5650। 16 to 120 7200 upon 110 12850 upon 110 116.82। बेटा कॉपी करने वालों मजा आ रहा है? लियो मजा लियो। हम खुद से कर रहे हैं सर। मेहनत देखो हमारी कितनी है। बेटा व्हाट से? बेटा प्रभ को इतना गुस्सा क्यों आ गया? बेटा x बार c 116.82 आ गया। सो बेटा d1 व्हाट्स द फॉर्मूला? x बार 1 minus x bar c। x bar 1 is 113 minus 116.82 minus 3.82। अरे बेटा इसका सीधा स्क्वायर कर दो ना। 3.82 का स्क्वायर 14.59। ओके बेटा D2 x bar 2 minus x bar c 120 minus 116.82 3.18। so D2 का स्क्वायर 3.18 का स्क्वायर 10.11। बेटा अब तुमको लाज शर्म आ रही है? बेटा put it in the values, in the formulas, get the answers, come on। पूरा सम करवा लिया यार तुमने तो सर पूरी फीस भी तो दी है।
बेटा where reached? मैं करूं x bar c is equal to n1 is 50, s1 square is 36, d1 square कितना बे 14.59, 16 to s2 square 49 plus d2 square 10.11 upon 50 plus 60 बेटा 15 to 36 plus 14 50.59, इधर 59.11 अपॉन 110, so it's 252.9.5 plus 35.6 upon 110 607 upon 110 55.24 7.43 सर मजा आ गया, इस हम करने में मजा आ गया है ना, फुल कॉपी मारी है। चल जाओ यार, चलो कम झूठ बोलो बेटा। कैन आई गो टू द नेक्स्ट सम? इज दिस डन? प्रॉपर्ली कॉपीड? अरे क्या यार, सच बोला करो। 13 चलो शुरू करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट सम है लेकिन इजी है। लेट्स स्टार्ट। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, shall I rub it off? But I'm waiting. कुछ लोग अभी भी कॉपी मार रहे हैं, इट्स ओके, मैं नहीं देख रहा तुमको, कर लो। बेटा मैं देख ही नहीं रहा हूं तुमको, हो गया? अब बेटा 13th वाला उठाओ, चलो 13th वाला उठाओ। क्या बोल रहे हैं? The sum of 10 observation is how much? 80 and the sum of the squares 800। बोले तो क्या ये बोल क्या रहे हैं? खबर नहीं सर, कोना सम खबड़ा ही रहा है। अच्छा रुको, हाँ जी, the sum of 10 observation, what do you mean by that? sum of 10 observation, very good बेटा, लिखा जाए इंग्लिश में। sum of 10 observation का मतलब बेटा सिग्मा xi, जो कितना है 80, sum of the squares of the observation, बोले तो सिग्मा xi square कितना है 800। क्या से मैं ऐसा लिख सकता हूँ n मेरा 10 है? कैसे सर 10 कैसे? अगर 10 ऑब्जर्वेशन है तो n 10 आएगा ना। फाइंड क्या करना है? CV s upon x bar into, but what are we supposed to find? s upon x bar into, तो बेटा मुझे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है, फिर x बार ढूंढना है, फिर मैं कर पाऊंगा। बेटा लुकिंग इनटू दिस इंफॉर्मेशन, कम ऑन, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या लगेगा देव? बहुत बढ़िया। देखो मैंने वाले जो फॉर्मूला लिखवाए वो आ रहे हैं ना। तुमने उस दिन वो जो सम कॉपी मारे थे xi माइनस x बार स्क्वायर करके, जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला यूज किया था, देखो वो नहीं है, ये वाले फॉर्मूला से आंसर आएगा। तो बेटा फॉर्मूला लगा के आंसर ले आओगे। मैं राह देख रहा हूं तुम्हारी। x बार के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा xi अपॉन n। बेटा गेट मी द वैल्यूज, शाबाश। बेटा होगा, तुमसे ही होगा।
तो मैं करना ही नहीं। बेटा चुप मर के आंसर लेके आओ, बाकी जनता फिर सीधा सीधा लिख डालेगी, तुम जानते नहीं हो। बेटा मैं करूं? स्टैंडर्ड डिविएशन आंसर बताओ, ये बोल रहा हूं। सबका आ गया? नेक्स्ट बार। So 4/8 into 50%। अब बेटा ये 13 समझ में आया? 11th इसके जैसा है। अब ट्राई मारो 11th। अब जरा आवाज करके बताना आ रहा है कि नहीं। मुझे दिया है सिग्मा DI 25 और सिग्मा DI स्क्वायर दिया है 272, n दिया है 100, अज्यूम्ड मीन दिया है दैट इज A 4। अगेन बेटा CV फाइंड करना है, S/x into 100 जो उसका फॉर्मूला है। मैं कर दूंगा सर, आप खाली फॉर्मूला बता दो, मैं कर दूंगा। बेटा अगेन वी आर सपोज टू फाइंड द CV जिसका फॉर्मूला है S/x into 100। शाबाश। अच्छा, anybody can tell me what will be the formula used for obtaining standard deviation? Kunal. Sigma DI square upon n Sigma DI square upon n minus sigma DI upon n into whole square. Sigma DI upon n the whole square. Yes, very good. बेटा x बार कैसे मिलेगा? Raise your hand. x बार। बेटा क्यों गुस्से निकाल रही हो? बेटा x बार के लिए फॉर्मूला फरदीन मुझे नहीं पता, तुम मुझे बताओ ना। हाँ नहीं आ रहा है। हाँ इट इज A प्लस। बेटा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला x बार का भी A प्लस सिग्मा DI अपॉन n। खाली तुम्हारी हालत देखो कितनी खराब है। सब में सब इंफॉर्मेशन दी है, सब चीजें हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। सोचो एट व्हाट लेवल यू आर लल्ला।
बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन बताऊं 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 करके बताऊं कितना है स्टैंडर्ड डिविएशन 1.63 हाँ तो वही होता है बेटा x बार 4 बेटा आई एम नॉट सॉल्विंग इट बट आर यू गेटिंग द आंसर इफ यू आर नॉट गेटिंग इट प्लीज लेट मी नो तो मैं तुमको बाजू वाले की बुक में से देखने के लिए बोल दूंगा मैंने ना करना है ऐसे इसी सब मैंने नहीं करने 38.5 बेटा 434 435 सब चले यार आंसर आ रहा है कौन सा ये आंसर नहीं आ रहा तेरे सिग्मा di square is 272 upon 10 minus 25 upon 10 the whole square हाँ रुक जाओ 100 okay so this is 2.72 minus 0.25 का square so 2.72 minus 0.0625 66 65 1.63 अब बेटा x बार के लिए a प्लस सिग्मा di अपॉन a है 4 di है 25 so बेटा it's 4.25 बेटा अब CV का भी आंसर लिख लेता हूँ चलो 1.63 upon 4.25 into 100 38.35% बेटा सेक्शन ई का फर्स्ट वाला होला ये बाकी फर्स्ट बेटा व्हाट अबाउट सेकंड सच बोलो हो गया है व्हाट अबाउट थर्ड आज का होमवर्क है वो थर्ड वन इज आज का होमवर्क फोर्थ आज का होमवर्क देन सेक्शन एफ Section F, sum number 1. Then section F में sum number 5. पहले बेटा उठना करो, ठीक है? अब इधर ध्यान बेटा, इधर ध्यान. पेज नंबर 158 पर चले जाओ. ये वाला सम तुम्हें अभी मेरे सामने करना है. इलस्ट्रेशन 26. बहुत इजी सम है. इलस्ट्रेशन 26 तुम्हें अभी मेरे सामने करना है. अरे मार्क करो. इलस्ट्रेशन 27 भी तुम्हारा होमवर्क है. इलस्ट्रेशन 27 भी तुम्हारा होमवर्क है. बेटा 26 करके दिखा दो. 3 क्वेश्चन के जवाब देने हैं. वेरी इजी सम. आई एम नॉट गोना डू दैट. स्टार्ट. Illustration 26. All of you.